What do you think that आज LinkedIn पे अपनी एक वॉइस रखना, अपनी एक फॉलोशिप रखना, is it still something जो कुछ लोगों के लिए ही fascination है, या is it has become a survival kit for new professionals? To be known for what you do is very important, and you need to understand that as AI emerges, as AI takes over jobs, बहुत सारी specialists, बहुत सारी technical jobs AI वैसे ही ले लेगा. There your branding will show up. क्या पोस्ट करें और कैसे पोस्ट करें और क्या है इसका गेम, था इसका समझाओ हमें. अकाउंटेंट को 10 साल हो गया, वो कह रहा है मुझे ब्रांड बनाना है या मुझे एक्टिव है. सही. इससे बड़ी स्किल क्या है कि आपको अकाउंटेंसी आती है. आप मैनेजमेंट इज सच अ वास्ट फील्ड. कल्चर कैसे ऑफिस का बनता है, व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशंस डू, व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशंस नॉट डू. थोड़ा मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी, इंडिपेंडेंस के बारे में बताओ, और क्या और कोई तरीके हो सकते हैं जिसको हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं? आई वुड रिकमेंड टू जस्ट हैव अ स्लाइट इंटरेस्ट इन म्यूचुअल फंड. ओके. हाउ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट वर्क्स. इसके लिए आपको कोई स्टडीज की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बेसिक रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और आप सही लोगों को फॉलो करो. क्या मास्टर्स की डिग्री या डिग्रीज वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि मैटर बिल्कुल नहीं करेगी कुछ टाइम बाद, क्या आर वी ऑन दैट ट्रैक ऑलरेडी? व्हाट्स हैपनिंग? Skills will matter, but एक डिग्री लेना is not just about skills. It's about your grooming, about how life teaches you, how you interact with other people. पहले जरा अपनी जर्नी बताओ. When did you decide that you need to have your own setup, your own startup, your own business? I always had a drive that I could do more with life. I always wanted to do more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मेरा नाम है Zen Goplani and I welcome you to the very first episode of No Cap with Zen Goplani. Now, when I was thinking of the guest list कि मैं किसको बुलाऊं, किसको ना बुलाऊं, because as I told you earlier in my videos that No Cap is all about unfiltered conversation, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला मेरा childhood friend, वो शख्स जिसके साथ मैंने अपना पहला ट्रेनर किया था सन 2009 के अंदर, वो है उमर फारूकी. उमर is a great HR person. He's a very big and popular LinkedIn influencer as well, and of course बहुत सारा काम किया है उमर ने. क्या क्या किया? of course he is also an entrepreneur. ये सारी बातें आज हम उमर से करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली कैसी जर्नी रही है, क्या क्या चीजें बताते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी. उमर खास तौर पे इसके बहुत बड़े एडवोकेट है. क्या बताते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से, ये सारी बात इंशाल्लाह आज हम करेंगे उमर फारूकी से. Hi, I'm Umar Farooqi. I call myself an explorer of people, ambition, potential. I've been in HR for around 12 years. I've been trying to scale organizations to becoming the best place to work at, whether it's org design or capacity, rewards, talent management, or just engagement. I'm also founder and MD for Elevate International, where we try to uplift professionals, especially students as well, in terms of their career, and also uplift organizations by providing the right counseling, consultancy, and training. I also happen to be founder and MD for All Natural, which is a premium organic oil brand built on trust and customer value. वेलकम ऑन बोर्ड उमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आज. Thank you, Zen. Lovely to meet you again after so long. Yes bro, and definitely आज का जो मैंने आपको बताया था, आज हमारे जो एपिसोड का नाम है वो है वॉइस, वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी. उमर, you have been working in HR field for decade now, more than a decade now, if I'm not wrong, 15 years almost हो ही गए आपको इसमें काम करते हैं. 12 years now, mashallah. But also you have become a very popular LinkedIn voice while climbing the ladder of HR field. How did that happen to you? Was it very natural? Was it deliberate? COVID में मैं जानता हूँ बहुत active हो गए थे. Please, if you can please tell us about that. So then I started being active on LinkedIn in 2014. Okay. Everyone thinks के overnight followers या traction या engagement हो गई. ऐसा नहीं था. I started in 2014. The prime reason was I think it was a great medium of expression for me. I was in HR. I used to look after people, their policies, how to engage them. Yeah. So मेरा day in day out was around people, hiring, recruitment, and people needed help. I was blessed, privileged to graduate from LUMS. Got an opportunity straight outside. But I personally felt 90% didn't have that opportunity and they needed that guidance. Interesting. मैं LinkedIn पे बस शेयर करता रहता था. पहले एक साल तो मजाक उड़ता था, यार तुमने एक अवार्ड की पिक्चर लगा दी, तुमने ये क्या अपडेट लगा दिया. अच्छा. I was like, यार मैं तो वैसे ही शेयर कर रहा हूँ. Okay. People then after a couple of years people started commenting, यार because you posted this it changed my life. Wow. आपने ये बताया तो मेरी यहाँ जॉब लग गई. So that went on and the intention was never to become an influencer. मुझे आज तक नहीं पता influencer किस level पे जाके आप बनते हो, but COVID में especially when layoffs happened, when people actually needed help,
We also had time because we were at home. तब मुझे some mentors, some great friends, I would like to mention them, Tahir bhai, when I was in Engro, मुझे उन्होंने पुश किया कि यार आप सेशंस करें जिसमें आप लोगों को गाइड करें. Okay. वो एक सेशन स्टार्ट हुआ है और वो YouTube पे एक बर्स्ट आया है अराउंड 15,000 फॉलोअर्स. Yeah. LinkedIn पे एक बर्स्ट आया अराउंड 100,000. And yeah, that was about it. The idea is just to be honest, just to help people out, and that's it. Now, while you have mentioned, Umar, that you are actively working on LinkedIn since 2014, so we're looking at 12 years now. To be really, really honest, I have been in a professional field with you only, but मैंने शायद LinkedIn को explore 2019-2018 में थॉट करना स्टार्ट किया था, पर्टिकुलरली क्योंकि मुझे क्लाइंट्स चाहिए थे. उससे पहले तो फेसबुक पे काम करते थे हम सारे के सारे, एंड इंस्टाग्राम पे काम करते थे. खैर, दूसरी चीज वह ये है कि while you may have started early, a lot of people are now actively really working on their LinkedIn profiles, and 300K 400K, मतलब you name it, इतने सारे हैं सारे के सारी चीजें. What do you think that आज LinkedIn पे अपनी एक वॉइस रखना, अपनी एक फॉलोशिप रखना, is it still something जो कुछ लोगों के लिए ही fascination है, या is it has become a survival kit for new professionals? Yeah, great question. I think to be known for what you do is very important. एक तो main reason ये है for professionals who are dependent on a job. आपको नहीं पता अगले 1 साल, अगले 5 साल में आपकी जॉब होगी नहीं होगी. And you need to understand that as AI emerges, as AI takes over jobs, बहुत सारी specialists, बहुत सारी technical jobs AI वैसे ही ले लेगा. ठीक है. Companies अंडरस्टैंडेबली श्रिंक करेंगी. जब श्रिंक करेंगी तो फिर आप एक पॉइंट पे ये आ सकते हैं, आप ये बोले अच्छा यार वेयर डू आई गो. सही. देयर योर ब्रांडिंग विल शो अप बिकॉज योर स्किल सेट, पीपल वुड नो यू. सो फॉर एग्जांपल व्हाट यू पोस्ट, व्हाट यू टॉक अबाउट, हु यू कनेक्ट विद, पीपल शुड नो यू बाय योर फर्स्ट नेम. अच्छा आई नो यू. अभी मैं आपके स्टूडियो में आया, मुझे 2 लोग मिले, बोला यार आए. दैट्स द पावर ऑफ सटल नेटवर्किंग वेयर यू हेल्प पीपल आउट. और आपको नहीं पता आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, वेदर इट्स बिजनेस. पर्सनली मुझे सिर्फ जॉब में नहीं, मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प किया LinkedIn. लवली. वेदर इट्स एंडोर्समेंट्स, वेदर व्हेन आई स्टार्ट प्रॉपर्ली ट्रेनिंग उसमें, या कंसल्टेंसी, बिकॉज आई बिल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड जिसमें मैं एक क्रेडिबिलिटी शो कर सकता. एंड एवरीवन शुड डू इट. एंड दे शुडंट मेक इट अनदर टिकटॉक, बट दे शुड शो द रियल स्किल, the real depth that they have on LinkedIन, with the idea कि यार हम value add करेंगे सोसाइटी में और LinkedIn प्लेटफॉर्म में, and they will do wonders. अच्छा, आपने भी एक बात मेंशन की कि it cannot become another TikTok. अच्छा, LinkedIn की पोस्टिंग, now this is something a lot of people are still figuring it out. क्या करें क्या ना करें. अच्छा, अब मैं ट्रेनिंग्स कराता हूं तो जब ट्रेनिंग के डेज होते हैं तब तो मुझे पिक्चर्स मिल जाती है कि ट्रेनिंग की सुबह की पिक्चर डाल दी, ग्रुप पिक्चर डाल दी, एक एक्टिविटी की पिक्चर डाल दी, एंड क्योंकि मेरा काम ऐसा है. पर अ लॉट ऑफ पीपल जिसको मैं ये एडवाइस करता हूं कि लिंक्डइन को अपने एक्टिव रखो, वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या पोस्ट करें, क्या डालें, ऐसा क्या है डालने का. और वही वाली बात आपने डेप्थ की बात की थी कि डेप्थ लाओ अपने अंदर. Now you come from, you have done your A levels from Lyceum, you went to LUMS, you were always a great communicator. So of course वो सब कुछ था, but not everybody is a great communicator. ठीक है, चैट जीपीटी मौजूद है, बट मालूम पड़ जाता है ना कि भाई AI का क्या लिखा हुआ है और अपना क्या लिखा हुआ है. So not everybody is a great writer. Let's face the fact here. क्या पोस्ट करें और कैसे पोस्ट करें और क्या है इसका गेम था, इसका समझाओ हमें. यार आप अपनी लाइफ में भले अभी स्टूडेंट थे, अभी प्रोफेशनल लाइफ में, या आपने 10 साल गुजार दी प्रोफेशनल लाइफ, आपने कुछ तो किया है ना. चले हम एग्जांपल लेते हैं, अकाउंटेंट है. सही है. अकाउंटेंट को 10 साल हो गया, वो कह रहा है मुझे ब्रांड बनाना है या मुझे एक्टिव होना. सही. इससे बड़ी स्किल क्या है कि आपको अकाउंटेंसी आती है, आपने प्रॉब्ली ACCA किया है, या आपने CA के पेपर्स दिए हैं, ठीक है, या आपने MSc किया अकाउंटिंग में, अभी BBA किया है. सही. यार आप लिस्ट डाउन करें, आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, कॉर्पोरेट में इतनी चीजें आप सीखते हैं, एंड यू डोंट हैव टू स्टिक टू योर टेक्निकल फील्ड. मैनेजमेंट इज सच अ वास्ट फील्ड. कल्चर कैसे ऑफिस का बनता है, व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशंस डू, व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशंस नॉट डू. सिंपल. आप लिखें, आप पॉइंटर्स लिखें, आपके 1 महीने के पोस्ट वैसे ही रेडी हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू शेयर योर ओपिनियन. ओके, बस बात सारी है. ओके, तज्जिया आपका दुनिया के बारे में क्या है, कुछ तो होगा ना, कोई एक टॉपिक उठा ले. अब मैं आपको बताऊं, आज मैंने सुबह पोस्ट किया है ऑन ईटिंग 3 times a day. इसका मेरे HR से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स जस्ट दैट मैं खुद पर्सनली इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बिकॉज
मतलब थोड़ा सा मैं जब इस्लाम whenever I am confused, right, I just think what would Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम do. अल्हम्दुलिल्लाह. चैट जीपीटी को भी यूज करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ. लाइक यार वो तो 3 टाइम खाते ही नहीं थे, वो तो तब खाते थे जब भूख लगती थी. सही बात है. थोड़ा सा न्यूट्रिशन अपने आप को दो. बट ये 3 टाइम्स क्या है, ये कमर्शियल हमारे माइंड में डाला गया. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, जस्ट से व्हाटएवर एंड पीपल विल कनेक्ट, पीपल विल रेजोनेट. मेरा थोड़ा सा इजी ये था, मैं लोगों की हेल्प बहुत करता था, मैं चैरिटी भी करता था, मैं फिलैंथ्रोपी करता था. मैं सबसे बड़ी बात, सीवी भाई मुझे भेजो, मैं प्रीमियम चेक कर. बिल्कुल सही बात है. इट्स अ चार्ज सर्विस, बट कभी टाइम निकाल के भाई भेज दो, आई विल गिव इट टाइम. आप हर बंदे के पास वो डेप्थ है, हर बंदे के पास वो स्किल है, वो उसको जो है ना, वो डर कहाँ पे आता है, यार मैं लिखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे. ओके. वो शुरू के 3-4 पोस्ट में लगता है. उसके बाद आप अपने आप, यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज समवन हु इज ग्रेट. बात सारी वहां से शुरू होती है. आपने सुना होगा, वो पाक स्टडीज में पढ़ते थे, ओ लेवल्स में, व्हाई एक क्वेश्चन होता था, व्हाई वर ब्रिटिश एबल टू डू व्हाटएवर दे डिड इन सब कॉन्टिनेंट. ओके. तो आई एम नॉट सपोर्टिंग देम व्हाटएवर दे डिड, बट एक चीज मुझे अभी आज तक याद है, बिकॉज दे हैड अ फीलिंग कि वी कैन डू इट. हम डिजर्व करते हैं. वाओ. तो जब आपके अंदर वो एक होता है ना कि यार भाई मैं कर लूंगा, तो बस फिर क्या रह गया, बाकी अल्लाह है, बाकी तवक्कल है. विल टॉक अबाउट इट लेटर. बिल्कुल. बट फिर आप पोस्टिंग स्टार्ट करो ग्रेजुअली ना, आपकी एक कलेक्टिव सोसाइटी बन जाएगी आपके ग्रुप में, एंड देन आपको लगेगा यार मैं आई कैन एक्चुअली ऐड वैल्यू. रिसेंटली मैंने एक ग्रुप बनाया, पास टू $1 million. मैं $1 million का सोचता हूँ. मैंने कहा चलो सबको साथ लगाओ, कि मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी पे, मैं उस पे लिखता हूँ. अब वो बनाया था मैंने, मेरा पोस्ट आप देखेंगे, मैंने लिखा था यार 100 people ओनली, वी विल डिस्कस. आज वो 2500 लोग हैं. अब मुझे नहीं पता, वो लोग आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं, स्टॉक में भी लगा रहे हैं. ना मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन जो मुझे मिलती है मैं दे देता हूँ. सबके पास है. आप देखें माशाल्लाह, आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कितने कॉर्पोरेट के साथ आपको एक्सपोजर है. अगर मैं अभी आपसे बात करना शुरू कर दूं, 1 दिन लग जाएगा सिर्फ. उस कंपनी में मैंने ये देखा, उस कंपनी में उस दिन हम बैठे थे, 3 घंटे गुजर गए सिर्फ ये डिस्कस करते हुए अबाउट लाइफ, व्हाट शुड वी डू, ये वो. सो हर बंदे के पास है वो. असल में जो कोच और ट्रेनर होता है ना, अगर आप उसकी हेल्प ले लें, किसी मेंटोर की ले लें, you just sit in silence and write down for half an hour what skills you have, what have you done in life, and start talking about it. जब हम स्किल्स की बात करते हैं, अच्छा, स्किल्स इज समथिंग जो हम यूजुअली प्रोफेशनल लाइफ में सीखते हैं, ओवर द इयर्स सीखते रहते हैं. बट देयर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल इज इन एकेडमिया, an academic qualification. Now I know that you have done your bachelor's from LUMS. Economic and finance में क्या था, if I'm not wrong? Started with economics, graduated in political science. Wow, okay. अच्छा चलो, वो तो फिर भी एक डिग्री की. But over then you did not do masters. No. और आपने deliberately नहीं किया है masters. Multiple reasons. Okay, मैं जानना चाहूंगा because you are an HR professional. हमारे यहाँ तो मास्टर से कम को तो मुंह ही नहीं लगा रहे जी. And I remember when we had this conversation when I was going to Australia. और हम बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे सारी की सारी, जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था मास्टर्स करने के लिए. उस वक्त ऑफ कोर्स कुछ इनपुट्स थे आपके, अभी भी आपके इनपुट है. What do you think about that? क्या ओवरऑल एजुकेशन लैंडस्केप चेंज हो रहा है? क्या मास्टर्स की डिग्री या डिग्रीज वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि मैटर बिल्कुल नहीं करेगी कुछ टाइम बाद, क्या आर वी ऑन दैट ट्रैक ऑलरेडी? व्हाट्स हैपनिंग? यार skills will matter, ये तो हम सबको पता है. Yes. But a degree लेना is not just about skills. It's about your grooming, about how life teaches you, how you interact with other people. ठीक है. आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, देख रहा था कि why do people get promoted? Okay. Why do people move up? Okay. Because एक ट्रेनिंग है मेरी जो मैं इस पे अराउंड फोकस करता हूँ. Like what is one thing जो आप किसी को बता सको, यार ये कर लोगे तो you'll get promoted. हालांकि एक चीज नहीं होती. That was likability. Likability कहाँ से आती है? Okay. Technically तो हम सब strong हो जाएंगे, but how you communicate, how you deal with people, how you deal difficult situations, how you adapt, आपका emotional quotient कितना भी, word fancy तो सबको आता है, but मैं खुद struggle करता हूँ, हर बंदा struggle करता है, तभी तो हम इंसान हैं. सही बात है. इतना ideal तो है नहीं हम. सही बात है. तो वो आपको मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनली, यूनिवर्सिटी के अलावा आपको वो कहीं नहीं मिल सकती, बिकॉज जो टाइप ऑफ लोग आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, दैट चेंजेस योर लाइफ. आप जिस भी स्कूल और यूनिवर्सिटी गए हो, चाहे वो टॉप टीयर हो, सेकंड टीयर हो, थर्ड टीयर हो, उसने आपको शेप किया. अगर आप थर्ड टीयर में गए, उसने आपको शेप किया. अब आप नेक्स्ट जाओगे अपर टीयर में, या फिर आप कॉर्पोरेट में सीखोगे, या फिर आप पर्सनल लाइफ में अपना इम्प्रूव करोगे. ठीक है.
सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपकी बात जो मास्टर्स की है, मास्टर्स आई रियली वांटेड टू डू मास्टर्स, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा करें अगर वो कर सकते हैं। एजुकेशन तो कभी रोकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि जब आप अच्छी जगह से मास्टर्स करते हैं, उधर के जो प्रोफेसर हैं वो 30-40 साल अपना एक विजडम लेके बैठे हैं, वो आपको कुछ बताते हैं, वो विजडम के ही पैसे हैं भाई, और वो जो आप लोगों से उठ बैठ रहे हो, नेटवर्क कर रहे हो, जो पूरी जिंदगी चलेगा, उसी के पैसे हैं। बाकी अगर आप ये बोलो कि मेरे हाथ से डिग्री होगी मुझे जॉब मिल जाएगी, ये थोड़ा सा आप गलत इक्वेट कर रहे हो। मास्टर्स मैं जरूर करता, बट वेयर आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम बहुत महंगा था। आई हैड रिस्पांसिबिलिटीज एट होम, तो मुझे तो 7-8 साल वो फिगर आउट करने में लग गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह करियर मेरा चलता रहा अच्छा। लेकिन मैं पर्सनली देखता हूँ, मैं 5% ऑफ द पॉपुलेशन में, 95% you need to get the right degree because in order to have foot in the door, या तो आप टॉप टियर से पढ़ें पाकिस्तान, सही है। और मैं सबको ये बोलता हूँ अगर आप टॉप टियर से नहीं कर पाए ना, टॉप 5-6 यूनिवर्सिटी, या तो आप बाहर चले जाएं, सही है, क्योंकि जो आपको जॉब मिलेगी ना यहाँ, उससे आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। अग्री, और आप सिर्फ बाहर जाके एटलीस्ट घर को सपोर्ट कर सकेंगे, अपनी कोई लाइफ बना लेंगे, फिर आप बाद में आ जाइएगा और किसी तरीके से जाके मास्टर्स कर लें, अपनी एजुकेशन बढ़ा लें। तो मेरे हिसाब से तो यार एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये जो सॉफ्टवेयर साइड है ना, दिस इज व्हाट एक्चुअली एज एन इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। ये आपको जितना पता है ना, कल चैट जीपीटी आज जितना है, 2 साल बाद वो इतना और प्रो हो जाएगा कि आपकी टेक्निकल फील्ड मैं 5 मिनट में सर्च करके निकाल लूंगा। सही बात है। 1 दिन लगाऊंगा, 2 दिन लगाऊंगा, समझ आ जाएगा भाई। लेकिन जो सॉफ्टवेयर साइड है ना, हाउ टू डील इन सिचुएशंस, लाइकेबिलिटी, दिस इज समथिंग व्हिच experiences can teach you. एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, और हमने कहा था वॉइस वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग अप एंड शोइंग अप एंड ऑल दोस थिंग्स। यू हैव बीन वर्किंग विद टॉप टियर ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। जो उमर फारूकी को जानता है, ऑफ कोर्स वो जानता है कि उससे कहाँ का काम नहीं किया हुआ, एंड यू हैव वर्कड विद सी लेवल पीपल, यू नो, सारे के सारे। आप एक वर्ड बोल रहे हैं, लाइकेबिलिटी, यहां कितना मैटर कर रहा है कि टॉप टियर में आप अच्छे दिख रहे हैं, ग्रूमिंग है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है, और एक और एलिमेंट है आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। सर इस पे बताओ, कई सारे लोग इदारों में बैठे हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, बहुत सारे मसाइल हैं, रुकावटें हैं अगेन, और वो उसको सियासत का नाम देते हैं। क्या वाकई में सियासत ही है, या उनकी अपनी भी बहुत सारी नाअहलियत रहते हैं? यार जहाँ इंसान है वहाँ पॉलिटिक्स है। सही बात है, बट उसको मैं ये अच्छा नहीं समझता कि आप उसको रीजन बनाएं अपनी लैक ऑफ ग्रोथ के लिए। ओके हाँ, आप ये कह सकते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि इधर ना इनोवेशन नहीं होती, ग्रोथ नहीं देखी जाती, कोशिश करते हैं रगड़ा मारते रहो एम्प्लॉय को। हाँ ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पाकिस्तान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर नहीं काम किया, मैंने अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बट आई नो ऐसी हैं। बट आई पर्सनली फील, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मैं खुद एचआर में रहा हूँ, people are great in what they do. Okay. So आप अकाउंटेंट लें, एचआर का बंदा लें, सप्लाई चेन का लें, लीगल का लें, वो आप उसकी टेक्निकल नोहा में घुसेंगे ना, उसको आप गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की किसी ऑफिस में भी जाएंगे ना, उसको प्रोसेस पूरा पता है। यस, बिल्कुल। प्रोसेस कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सारी आती है व्हेन यू लुक फॉर अ लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप पोजीशन में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसमें आपका रिलेशनशिप कैसी बिल्डिंग है लोगों के साथ, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप लीड कैसे करते हैं, आप लीडर क्या है। हमारे यहाँ क्या होता है, आपकी टाइम पूरा हो गया, प्रमोशन, यू बिकम अ मैनेजर। लीडर कौन बनाएगा भाई? सही बात है। अच्छा, उसकी स्कूल में नहीं पसंद आया, लीडरशिप नहीं पढ़ी, वो उसके अगर किस्मत अच्छी है तो लोगों ने सिखा दिया, बॉस ने सिखा दिया, बट अगर नहीं सिखाया तो वो लीडर तो नहीं बना। सही बात है। तो आई से इट एवरी टाइम, के इलेक्ट्रिक के टाइम से, यू बिकम अ मैनेजर बट यू नेवर बिकम अ लीडर, एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉरगेट अबाउट इट। तो लीडर कैसे बनते हैं? लीडर होता है भाई जो हु कैन यूनाइट पीपल फॉर अ कॉमन गोल, हु कैन सी लॉन्ग टर्म, हु कैन मोटिवेट पीपल, और उसको लीड कर सके कि यार आई नो, मेरी बात सुनो और आगे चलो। अब वो लीडरशिप कौन समझाएगा? इसी वजह से बहुत लोग हमेशा हेड लेवल और जो एंट्री लेवल, इसके बीच में मिडिल टियर है, उसी पे रहते हैं। सवाल वही है, कौन समझाएगा, किसको समझाना है? समझाएगा ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, ओके, बाय एग्जांपल। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो कहते हैं ना, जो बजट होता है, जो ट्रेनर, दैट्स वेयर द बजट शुड गो, बिकॉज दैट्स अ बिग गैप। और अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी इम्प्रूव, क्योंकि पोजीशंस कम है या जो भी है, तो यार आप उनको अपस्किल करो ना, वो कहीं और जाएंगे। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है कि आपका बंदा कहीं और अच्छी जगह पे गया है।
मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाए तो यार प्रॉब्लम हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या, पूरी जिंदगी वो एक टैग लेके घूमेगा। Yeah. तो ये समझाएगा लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। और आपकी वैल्यूज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आपकी वैल्यू ये है कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस लाओ और इसी को देखो, हमें नहीं परवाह तुम्हारा मूड कैसा, हमें नहीं परवाह तुमने 7 दिन काम किया, हमें नहीं परवाह तुमने 15, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिर होगी भी वैसी और कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी। सही है। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं यार, देयर मोटिवेशन, देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, देयर करियर इज इम्पोर्टेंट टू अस, वो आपको सबसे पहले एक लीडर बनाएगी। लीडर इन पर्सनल लाइफ, लीडर इन प्रोफेशनल लाइफ। और यही लीडर्स यार ऊपर जाते हैं, यही एक डिफरेंस है लीड। और अगर आप ऊपर पहुंच भी गए ना, आप लोग कहते हैं ना सोर्स है, वो 1 साल से ज्यादा 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, बिकॉज वो बैठ ही नहीं पाएगा, लाइक यू विल नॉट फिट इन द सिस्टम। ओके, एक आखिरी सवाल, बिकॉज मेरे सेगमेंट से खत्म हो गया, बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। You have gone to the elitist University of Pakistan. You have worked with top tier organizations of Pakistan, जो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है, चाहे आपका केयर इलेक्ट्रिक हो जाए, आपका एंगर हो जाए, आपका फूड पैंडा हो जाए, तीनों बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट उमर, ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो कंपनीज है, ये आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। हम जब काम कर रहे होते हैं मार्केट में विद मिड टीयर ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे जो लीडर बैठा हुआ है ना, उसने खुद यही ट्रेनिंग ली थी कि डंडा मारो काम कराओ, डंडा मारो काम करो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एंड माय टीम वुड एग्री ऑन दैट। हम ट्रेनिंग्स करवाते थे 3 घंटे की, क्योंकि 3 घंटे निकाल सकते हैं। उसके बाद उनको दफ्तर भेजा जाता था, जाओ टारगेट्स पूरे करो, सेल्स की बात कर रहा हूं। और वो ये बोलते थे कि जैन 3 घंटे के ये जो है ना, हमारे पूरे महीने के सबसे बेस्ट 3 घंटे होते हैं, क्योंकि इस 3 घंटे में हमें बहुत मजा आता है। मगर प्रॉब्लम ये कि आखिरी के जो 1 घंटा होता है ना, हमें टेंशन लगी जाती है, टारगेट्स, नंबर्स। अच्छा, उनकी लीडरशिप बोल रही है ट्रेनिंग करो, ग्रूमिंग करो, बट वो सारी बातें ना कल्चर में नहीं बैठ पाती। और पॉइंट ये कि जो लीडर है उसने खुद ने गलत लीडरशिप सीखी हुई है, और वो नंबर्स ला रहा है, नंबर्स उसके अच्छे हैं, सब कुछ सही चल रहा है उसका, बट कल्चर नहीं है। एंड यहां पे क्या करें भाई? क्या इन बड़े इदारों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सिखाए? क्या आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपना टाइम वॉलंटियर करें? क्या किया जाए? बिकॉज वीडियोस तो सारे ये भी देखते हैं यूट्यूब पे, बट इंप्लीमेंटेशन जीरो हो गई है। व्हाट डू यू थिंक इज द गैप हियर? यार, कल्चर कैन नॉट बी टॉट बाय बिग पोस्टर्स और वैल्यूज। वो तो अब चैट जीपीटी से आप उठा लें, टॉप दुनिया के 6 वैल्यूज क्या हैं, आप कंपनी में डाल दें। कल्चर इज बाय बिहेवियर, और वो बिहेवियर आता है लीडरशिप से। बट देन इट्स अगेन अ चॉइस। देन वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसी कंपनी है जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो इस तरह करवा रही हैं काम, तो इवेंचुअली यू डू वांट टू वर्क हियर, यू वांट टू मेक अ करियर हियर, और यू डू नॉट वांट टू वर्क हियर, बिकॉज ये चेंज नहीं होने वाले। ये अपने एक सिस्टम से चल रही है, और ये तब चेंज होंगी जब इनको फील होगा कि यार ये टैलेंट है ना, ये भाग रहा है, ये खुश नहीं है और ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहा, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने बारे में। और ऐसा होता है। सेठिया जब आपकी, नॉट ऑल सेठिया आर बैड, कुछ अच्छी भी होती हैं, बट मोस्टली वो इवेंचुअली एक कॉर्पोरेट की तरफ जाना शुरू होती है। व्हाई? तो लाइक यार लिबर्टी दो, पीछे ना पड़ो, माइक्रो मैनेज ना करो, इनको काम करने दो, बस टारगेट दे दो एंड लेट देम डिसाइड हाउ दे वांट टू डू इट। वो कब आता है उनका स्टेज, वो है। बट आपका मसला है कि आप काम करना चाहते हो। अब फिर इशू वो आता है ना, लोग आगे से बोलते हैं कि यार फिर जॉब नहीं है, किधर जाए? सही बात है। एंड दैट्स वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एटलीस्ट अ सेकंड इनकम। दैट्स भाई ठीक है, आपने क्यों अपना माइंड बनाया हुआ है कि यार मैं मेरी जिंदगी ये है, इसके अलावा मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट समवेयर, यू नीड टू फोकस। एक गैलप का वो आ रहा था लिंक्डइन पे, बड़ी अच्छी चीज थी। गैलप ने बोला है, एक स्टडी की, उसमें आई थिंक a decade or 2 decades back or maybe 3 decades, I don't know, उसमें around 40% of the people were employed in Pakistan. बाकी बिजनेस में थे, जिसमें भी थे 40%। ठीक है। अब के फिगर्स हैं 60%। 60%। So that means 60% अब जॉब मार्केट, मतलब नौकरी करते हैं। ओके। अब आप देखें कि ये सिविलाइजेशनल शिफ्ट है कि अब पाकिस्तान ऑपरेट कैसे करता है, बस नौकरी, पैसा, नो जॉब सिक्योरिटी लिमिटेड, और आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई और इनकम्स बढ़ी नहीं है। तो वो किस कंडीशन में रह रहे हैं? 60% अवाम किस कंडीशन में? सही बात है। तो ये आपकी हालत है। बट जवाल में रूज भी है। तो जब आप इस कंडीशन में आते तब आपको ये सोचना होता है यार नेक्स्ट क्या करूं?
फिर आप अपना बिजनेस की तरफ आते हैं, फिर आप अपना कोई प्रोडक्ट लाते हैं। डन। इसी सेगमेंट पे, इसी बात पे हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं और फिर अगले सेगमेंट पे आते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। ग्रेट कॉन्वर्सेशन सो फार उमर, लेट्स गो टू सेकंड सेगमेंट नाउ। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑफ कोर्स द करियर ट्रांजिशंस। इस बारे में बात करते हैं। उमर, नाउ यू आर आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, यू रन योर ओन बिजनेस, प्रीमियम ऑयल्स के ऊपर आप काम करते हैं और नेचुरल के नाम से, एंड आपने भी बिजनेस के लिए काफी टाइम हो गया, स्टार्ट किए हुए चीजें वगैरह। पहले से अपनी जर्नी बताओ, व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू नीड टू हैव योर ओन सेटअप, योर ओन स्टार्टअप, योर ओन बिजनेस? हाउ डिड दैट थॉट कम टू बीइंग एंड व्हाट वाज द जर्नी लाइक? एक थोड़ा इसमें बताएं आप हमें प्लीज। Yeah, I started in 2021. Okay. And it was after COVID. Okay. I always had a drive that, I could do more with life. Okay. I always wanted to do more. Right. I'm not saying job से मैं fulfilled नहीं था. I Okay. really loved my job. But even after 9 to 5, I felt कि यार जो ये time है ना इसको utilize करना है. And I wanted to create my own product जो मेरे साथ lifelong चले. So हुआ ये कि because I had एक्जिमा, सोराइसिस थोड़ा सा मुझे हुआ, अच्छा, स्पेशली ऑन द हेड, तो आई वेंट आउट टू सर्च फॉर ऑयल्स। ठीक है। जब मैं गया तो वो मुझे बड़े महंगे लगे। अच्छा। तो लाइक यार ये बादाम की ऑयल 1000 रुपए की, मतलब इतना तो नहीं, बादाम तो मिलता है पाकिस्तान में। सही। तो फिर मैंने रिसर्च की, हर जगह गया, इम्प्रेस मार्केट, जुड़िया बाजार, ये वो। मैंने कहा भाई ऑयल की कीमत क्या है मुझे बताओ। ओके। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहे हैं, मैं ऑयल दूंगा। ओके। मैंने ऑयल, मैंने कहा यार ऑयल ही बिकेगा। Interestingly, so when people think यार कहाँ से start करें, क्या product लाएं, हाँ, you can, when I joined this area, मतलब oil की जो cosmetic / oil, there are like 20 other brands. मेरे mind में ये नहीं था कि मैं आ रहा हूँ अब क्या होगा, people will prefer. मेरे mind में सिर्फ ये था मेरा अच्छा होगा product, people will decide कि उन्होंने लेना नहीं लेना. Okay. That's how I think. So quality पे फोकस था। क्वालिटी पे फोकस करो, अपना ब्रांड अच्छा बनाओ। इस तरह तो सारी खाने की दुकानें बंद हो जाएं कि यार खाने तो बहुत है। हाँ। तो ये लोग ना सोचें कि यार अब हम क्या ऐसा करें कि दुनिया में पहले कभी आए नहीं। आजकल हाँ AI और टेक में कुछ कर लें, बट ये प्रोडक्ट रिलेटेड तो शायद। तो अगर आपको कोई चीज इंटरेस्ट है और आपकी नॉलेज है या आपको एक्साइट करती है, स्टार्ट कर लें। बिजनेस हमेशा बोरिंग होगा, बिजनेस कभी एक्साइटिंग नहीं होगा। बिजनेस तब एक्साइटिंग होता है जब पैसे आना शुरू होते हैं, उससे पहले बिजनेस हमेशा बोरिंग होता है। तो वो बोरियत, कुछ भी कर लो आप, पानी बना लो आप, फर्नीचर बना लो, कुछ भी कर लो, एंड बोरियत ही है, बिकॉज इतनी खप है टू गेट टू दैट लेवल। तो मैंने खैर प्रोडक्ट स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंगली मेरा आइडिया ये था यार मैं दराज पे लिस्ट कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। सही है। स्टार्ट किया 3 ऑयल से, वो एंड में 15 बन गए। रिसर्च करते करते बोला यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। वाओ। 46 SKUs बन गए। 46 SKUs राइट नाउ। तो मैंने कहा यार ये तो कोई मसला ही नहीं दराज से, और लिटरली अपने कबर्ड के अंदर बॉटल्स रखी, पूरा कमरे के अंदर पूरा सेटअप बनाया। ओके। वहां से स्टार्ट किया 2021 में, एंड टिल डेट मुझे एक ऑर्डर नहीं आया दराज से। मेरा पॉइंट ये है, नॉट एनीथिंग अगेंस्ट दराज, आई एम अ रेगुलर कस्टमर, आई लव द ब्रांड। मेरा पॉइंट ये है बताने का कि जिस चीज से मैंने शुरू किया था वो तो हुई नहीं। तो पे कहाँ बिक रहे हैं आपके ऑयल्स? जब वो कंडीशन आई ना कि यार पैसे लगा दिए, टाइम लगा दिया, मार्केटिंग कर ली, बॉटल्स ले ली, हर चीज ख्वारी कर ली, मेरा टाइम वापस नहीं आएगा। मैंने कहा यार ये बिक तो रहा नहीं है। फिर देन आई रीइन्वेंटेड, आई वाज लाइक नहीं यार, आई नीड टू गो टू शॉप्स, आई नीड टू रीच आउट टू पीपल डायरेक्टली। वेबसाइट भी नहीं थी, वेबसाइट पे पैसे लगाए, इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हुआ, फिर पॉपअप्स हुए, उस पे गया। देन आई वाज लाइक यार इसको थोड़ा ब्रांडिंग पे और पुश करते। ऑब्वियसली आई हैड अ जॉब, मैं एक लिमिटेड टाइम दे सकता था, बट जितना मैं कर सका। पैकेजिंग की, उसको चेंज किया, ये वो। मेरा पॉइंट ये जहां से स्टार्ट किया वो तो हुआ नहीं, बट इट स्टिल वेंट ऑन एंड इट डिडंट डाई बिकॉज आई डिडंट डाई इनसाइड। मतलब यार नहीं, मेरा आइडिया ये चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो स्प्रिंग्स कराची में आया। जब स्प्रिंग्स में आया, पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग इट मोर, रेगुलर कस्टमर्स बने, पॉपअप्स पे गया। Alhamdulillah, it's delivered nationwide right now. We just dispatched to US as well. Very nice. Small package. We're starting to build that export area as well. So जिसको स्टार्ट करना है यार वो तो रास्ता ढूंढ लेता। ये बाकी सब नॉइज और बहाने हैं। जिसको नहीं करना ना वो 100 बहाने करेगा, जिसको करना है उसने करना है। और मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत बात करते हैं। नाउ यू चोज अ वे व्हिच वाज एन एंटरप्रेन्योरशिप वे। Now, not everybody has the capacity or the appetite or even interest in starting their own business. थोड़ा मुझे financial literacy, independence के बारे में बताओ,
और क्या और कोई तरीके हो सकते हैं जिसको हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, जहां लोग को अपना ज्यादा इतनी मेहनत ना करनी, भाई आप पैशनेट थे आपने कर लिया, सब नहीं होते सर, क्या करने की जरूरत है, थोड़ा इस पे गाइड करो। यार आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता, बट कैपेबिलिटी आई थिंक सबकी होती है। ओके ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना, मतलब ड्राइव नहीं है, क्या वो एक अलग चीज है। यार पैसिव इनकम के लिए एंड I would recommend to just have a slight interest in mutual funds. ओके। How Pakistani stock market works. Just for perspective, दुनिया में 4% 5% इंटरेस्ट रेट होता है और 10 12 20% रिटर्न्स हो जाते हैं साल के, तो लोग खुश हो जाते हैं। जी जी जी। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में कुछ फंड्स ने 300% रिटर्न दिया है, ओह विद द डॉलर बीइंग स्टेबल। तो आप अंदाजा लगाएं $100 पे 300%, 320%, लाइक एक नाफा का फंड है, फाइनेंशियल स्टॉक फंड। ये फंड्स का मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज फंड्स जो होते हैं दे हायर केपेबल पीपल एंड दे मैनेज योर मनी। जी 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 जी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट है, दुनिया जियो पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, क्योंकि उसका इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमारी अच्छा। लोकल पॉलिटिक्स किधर जा रही है, आपको पता है, जब आउट होते हैं तो फिर सभी आउट हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, IMF के साथ क्या है, इसके लिए आपको कोई स्टडीज की जरूरत नहीं है, इसके ठीक लिए है। आपको बेसिक रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और आप सही लोगों को फॉलो करें। ठीक है। आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं इंस्टा पे, आप 100 ऐसे लोगों को फॉलो कर लें, आपका माइंड 10 दिन में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड्स, कोई भी टॉप 10 आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उठाएं, इधर ठीक है, रजिस्टर कर लें। सही है। सेकंड, गोल्ड सिल्वर, ओके। इसकी परसेंटेजेस आप वेरी कर सकते हैं। आई वुडंट रेकमेंड गोल्ड पे, आप अगर आपके पास 100 रुपीज है, आई वुड रेकमेंड आप 10-15% गोल्ड पे या लगाएं। सिल्वर पे लगाएं, ओके। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिशनली मनी सेविंग एसेट्स। इन्फ्लेशन हो रही है दुनिया में, जंग हो रही है, तो आप कहते हो यार मेरे पास ये एसेट्स ले लो क्योंकि ये तो रहेंगे ना, बाकी पैसा इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनीथिंग। US Yeah. डॉलर इज आल्सो जस्ट अ पेपर। सही बात है। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा है जो मैंने किया था अर्ली ऑन, मैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पैसा कमाना सबसे पहले आपके दिमाग में आता है प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी के पैसे थे नहीं, सही बात है। 2017 2016 की बात है, तो मैंने दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने अपार्टमेंट कोई इंस्टॉलमेंट पे ले लिया ओके। बैरिया टाउन में। ओके। इस तरह आप कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी पीपल। अगर आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई, उस वक्त इतनी नहीं थी, तो आप राइट शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, सही। ये ग्लोबली होता है। सो दुबई में फॉर एग्जांपल स्टेक है, यू कैन, इफ फॉर एग्जांपल 1 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, तो आप लेट्स से 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, जी जी यू जी गेट अ पोर्शन ऑफ इट, बिल्कुल। उसका ही आपको रेंटल डिविडेंड आता रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, आरिफ हबीब, डॉल्मेन राइट, इस तरह 3-4 और है। या सो यू डू दैट। ये हो गया। बाकी आप अपनी, आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन, यू नीड टू गेट into having your own product or your own business. That's very very important. चाहे आप फ्राइज का स्टॉल लगा लो, फ्राइज का स्टॉल वाला भी लाख रुपए कमा लेता है कुछ ना कुछ करके अच्छी जगह पे। यू आउटसोर्स इट टू समवन, यू गेट अ रिक्शा, यू गिव इट टू समवन। आप कर सकते हो, आपको एक्टिवली रिटेल नहीं करनी ना, नहीं करो। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना, ना बनाओ, बट किसी को हायर करके कोई काम दे दो, उससे अपना वो पैसे। ये 4-5 चीजें अगर आप कर लें, आपके पैसिवली पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप, एक जमाना आएगा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, आप रेंट पे दे देंगे, उससे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। बट सेफेस्ट और कम पैसों में भी, मतलब 1000 रुपए में भी, 5000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का काम है। उसमें म्यूचुअल फंड्स में आप कहेंगे मुझे अभी रिस्क इतना नहीं लेना, तो इनकम फंड है, उस पर बेसिक होता है, कोई रिस्क नहीं है। फिर आप एक्स्ट्रा प्रॉपर इक्विटीज में चले जाएं, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें भी आप ब्लू चिप वाले में कर लें। ब्लू चिप मतलब जो आपकी टॉप कंपनीज हैं, एंग्रो है, UBL है, नेस्ले है, किसान बैंक है, नेस्ले है, मतलब आपको डिविडेंड इनकम भी आ रहा है। जब आपको इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊं, लोग प्रॉपर्टी का सोचते हैं कि यार इधर से ना रेंटल आ जाएगा। सही है। प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड साल का पाकिस्तान में क्या है? 0.5% से भी लेस है। नहीं, साल का इज 4%। मिल रहा है आप अच्छी प्रॉपर्टी, 3 to 4%, अच्छी प्रॉपर्टी मिल रहा होगा, अच्छी पे, और 5 हो जाएगा। दुबई में इट्स 7, 8, 10। दुबई में 10, पाकिस्तान में 2% भी मिलता है। चलो ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, जब आप एक अच्छा, आपने 1 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी पे लगाया, 1 करोड़ रुपए आपने स्टॉक्स पे लगाया ब्लू चिप। ब्लू चिप मतलब ये डूब ही नहीं सकती, मतलब प्रॉपर बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी। सही बात है। उसका 10%, 9 to 10% आपको डिविडेंड यील्ड है। चले 8 कर लें, 8 to 10 एनुअली। उस पर थोड़ा 15% CGT अगर फाइल कट के, आपको रेंट से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, और डिविडेंड के अलावा आपका जो 1 करोड़ है वो शायद 1.5 या 2 करोड़ भी हो जाए 1 साल बाद।
अगर स्टॉक अच्छी चल रहा है, अगर स्टॉक अच्छी चल रही है तो नुकसान क्या है? लेकिन लोग माइंड में क्या बिठाया हुआ है, आप एक डेड एसेट में लगाएंगे लैंड लेके और छोड़ देंगे 30 साल, हाँ उससे ना इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, ना आपके पास कैश फ्लो आ रहा है। इतने ज्यादा लोग हैं, प्रॉपर्टी है, घर है, लेकिन पैसे नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। आई गेस दैट्स अ ग्रेट इनसाइट उमर, जहां पे आपने बताया कि 10-15 लाख रुपए हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, बट डोंट यू थिंक दैट आवर पेरेंट्स वुड डिसएग्री टू सच नोशंस एंड वुड प्रोबेबली ask us not to go in the stock market or any market, would rather say कि बेटा 10-15 लाख एक्स्ट्रा तो गाड़ी अपग्रेड कर दो या एक आध चीज खरीद लो ऑल टुगेदर। मे बी गोल्ड पे इतना नहीं, बट डेफिनेटली म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे घबराहट हमारे बड़ों को बहुत ज्यादा होती थी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज दैट रीजन? अच्छा, घबराहट बिल्कुल ठीक है। मैं उस पर डिस्क्लेमर दे दूं, स्टॉक मार्केट में आप तब जाएं जब आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन ले सकें। अगर आप ये जा रहे हैं मैं अगले हफ्ते मुझे पैसे चाहिए आईफोन लेने के लिए, मैं जरा स्टॉक कर लूं, तो ऐसे नहीं होगा। ओके। स्टॉक मार्केट कंपनी जैसे ऑपरेट नहीं करती। स्टॉक मार्केट पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मल्टीपल अदर फैक्टर्स उस पर चल रही होती है और कंपनी की रिजल्ट्स पे चल रही होती है। तो आपको हाँ 1-2 साल हो सकता है बैठ जाए स्टॉक मार्केट, तीसरे साल बूम पे आ जाए। आप देखें, आप 2020 में स्टॉक गिरी कोविड में जी, इमीडिएटली बढ़ी वापस जी, हाई पे गई। 2021 टू 2023 गवर्नमेंट के इंस्टेबिलिटी और ये इकोनॉमिक इश्यूज, IMF, इसकी वजह से बिल्कुल ठप हो गई, 50-60%, नाउ ऑल टाइम हाई। सो अगर आप 5 इयर्स में देखें डजंट मैटर, अगर आप एक साल देखेंगे ना तो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो डोंट गेट इनटू स्टॉक इफ यू कांट लुक एट इट लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर आप कहते हैं फिर मैं पैसे क्यों लगाऊं, अगर आपका 15 लाख है, आप जो रूल होता है जनरली जो मैं फॉलो करता हूँ, 100 माइनस योर एज, 100 minus your age, ठीक है, is the percentage you can apply high risk. Oh wow. So if I take 67, 100 minus my age, yeah, 67% में अपने टोटल जो नेट सेविंग्स होती है ना पर मंथ, मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि मैं इसको हाई रिस्क में डालूंगा, चाहे उसमें से 5% क्रिप्टो, बाकी मैं शेयर्स में डालूंगा। मुझे मजा आता है शेयर्स में डील करने में। क्यों ऐसा है? बिकॉज यंगर यू आर द मोर एपेटाइट यू हैव कि अच्छा चलो अभी मैं रिस्क ले लूँ। जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये वो हैं। हर बंदे के लिए +-5% हो सकता है, बट यू गेट द पॉइंट कि यार उसके बाद जो बच गया है इसको आप सेफ फंड में डाल दो। ये आपका इमरजेंसी फंड है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका फिक्स डिपॉजिट है, जो भी सही, सही। बट ये आप फॉर्मूला लेके चलो, थोड़ा सा रिस्की बोलो। स्टॉक मार्केट को आप स्टडी करें पिछले 25 साल में, एंड देयर आर मल्टीपल गुरुज इन पाकिस्तान एंड आई फॉलो देम। देयर इज एन इंस्टा, लोग इंस्टा यूज करते हैं बहुत, तो मैं बताऊं इंडिया में एक बंदे संजय गुप्ता के नाम से, शायद उनको मैंने बहुत फॉलो किया। पाकिस्तान में देयर इज मशल वर्स, yes, I think she works in Alfala. Yeah. I think that she has great content. There is ARN, Abdul Rahman Najam. I think he. ठीक है। ये सब बात एक ही करेंगे, लेकिन इनकी जो एक्सपीरियंस और विजडम है ना, उसकी बेसिस पे आपको नॉलेज मिलती है और पोटेंशियली आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। सो देख के करें। डिस्क्लेमर ये है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा करें, प्रॉफिट होना ही है, बट पेशेंस का गेम है और कंपाउंडिंग आफ्टर 6-7 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पेरेंट्स की जो आपने बात की, पेरेंट्स, गाड़ी इज नॉट एन एसेट, यस, गाड़ी इज एन एक्सपेंस। या और जो गाड़ी लेते हैं लीज पे ये सोच के कि यार ये तो बन रहा है और डॉलर बढ़ता रहेगा, नहीं, डॉलर में बढ़ रहा है वो, आपकी बाकी गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, ठीक है? तो इट्स एन एक्सपेंस। आप वो सोच के करें एक्सपेंस कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और पेरेंट्स अगर कहते हैं लैंड में लगा दो, ठीक है, बट आई वुडंट पर्सनली रेकमेंड लैंड क्या आप अपने सारे पैसे लगा दो, मे बी 15-20%। ओके, इंटरेस्टिंग। चले, हमने करियर की बात की, हमने लिंक्डइन की बात की, हमने फाइनेंस की बात की। लेट्स एंड दिस सेगमेंट ऑन दैट नोट। हम एंटर होते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट पे, जो बात करता है द पावर ऑफ बिलीफ। क्या है, क्या नहीं है, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। और मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करो, रिस्क लेने की बात करो, करियर में ट्रांजिशंस की बात करो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग बिलीफ यू हैव। लोग कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, लोग चीज़ें घबराते हैं, चीज़ें वगैरह। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी विद द बिलीफ सिस्टम एंड ऑल दैट थिंग। तवक्कुल की हम बात करते हैं लॉट ऑफ टाइम्स, इसमें आपका क्या रोल रहा है? बिकॉज आपने बहुत मेजर रिस्क लिए हैं। मतलब अगर मैं आपके पिछले 3 करियर भी देखूं, तीनों इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ थी जहां आपने स्विच किया, फ्रॉम के इलेक्ट्रिक टू एंग्रो, एंड देन एंग्रो से डायरेक्ट फूड पैंडा। बहुत इंटरेस्टिंग
है वो, और थोड़ा सा बोल्ड भी है, यू नो। उस वक्त आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने सवाल पूछा भी होगा कैंगो छोड़ के फूड पैंडा क्यों ऑल टुगेदर। अगेन क्या था बिलीव, तवक्कुल की क्या गेम थी, उसने कितनी हेल्प की आपकी? देखिए, लाइफ में अगर आप ये समझते हैं कि आपके एक्शंस की वजह से सारा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा है नहीं। ओके क्योंकि जब आप ये बिलीव करते हैं ना, तो फिर आप सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इसमें पड़ जाते हैं। तवक्कल से पहले आती है एफर्ट, उसके बाद आता है तवक्कल। ठीक है। यू हैव टू टाई योर कैमल फर्स्ट। यू ठीक है। कांट, मतलब अल्लाह बिल्कुल देख रहा है, बट आपको अपनी एफर्ट करनी है। तो जब आपने अपनी पूरी एफर्ट कर ली, अपनी जजमेंट कर ली, अपनी स्टडी कर ली, उसके बाद डिसीजन ले लिया, तो बस अब अल्लाह के हाथ में। अगर वो चीज डजंट वर्क आउट, दैट इज स्टिल अ लेसन। इफ इट वर्क्स आउट, ग्रेट। बट आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा होगा क्या, क्योंकि आपकी जो खैर ख्वाह की जिम्मेदारी है वो अल्लाह के पास है। बेशक। अगर आपने सिर्फ एफर्ट करनी है और आपने नेक नियत रखनी है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो टेंशन किस बात की है। मैं इस तरह सोचता हूँ, लाइफ ऐसी छोटी है, आपको नहीं पता आपने कब चले जाना है, सीधी सी बात है। आप दुनिया के इतने मसलों में पड़ जाते हैं, ये नहीं होगा, इतने पैसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ठीक है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स। एट द सेम टाइम आपने बस अल्लाह पे छोड़ देना है ना, आपने अपनी एफर्ट करनी है। मैं जो जितना मर्जी फाइनेंशियल लिटरेसी कर लें, करियर की बात कर लें, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या होना है कल को। बिल्कुल। बस आप एफर्ट करें और बाकी अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने अच्छा करना होगा आपके साथ, अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह ने आपको लेसन देना होगा, आपको अल्लाह एक लेसन देगा, उससे आप सीख के और कुछ अच्छा कर लेंगे। अच्छा, while you saying this, you know, of course it requires a lot of belief that you already have, alhamdulillah rabbil alamin, but at the same time लोगों में डर आज भी बहुत है। fear of losing, fear of failure, fear of not being able to meet the expectation of bosses, of family members and everything. ये expectations के जो burden shoulders पे आए हुए हैं इतनी ज्यादा, you know, for example कई बार लोग कहते हैं कि no, हम सब mental illness की बात भी करते हैं, और एक आध बार सुनता था कि भाई डिप्रेशन हो रहा है नमाज पढ़ो, एंजाइटी हो रही है नमाज पढ़ो। Now you have to understand they are both at different things, but mental wellness, मेंटल इलनेस, ये सारे के सारे ऐसी चीजें जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है, या अभी भी घरों पे बात नहीं हो रही इतनी ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू हैपन राइट नाउ? या डेफिनेटली एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग इन लाइफ, और लाइफ के चैलेंजेस में आप इतना फंस जाते हो कि आपको समझ नहीं आता व्हाट नेक्स्ट। जितना मर्जी आप स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, आपका स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। अब मैं पर्सनल अपना बिलीव बताऊं, आई एम नॉट सेइंग सबको ये करना चाहिए, मुझे नमाज पढ़ के सुकून मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई गो साइलेंट, आई थिंक। कितने लोग हैं यहाँ बैठ के जो एक्चुअल चुप करके सिर्फ सोचते हैं, समझ रहे हैं आप? साइलेंस नहीं है ना। सुबह से उठ के मोबाइल पहली चीज हाथ में होती है। आपको पता, मैं एक रील देख रहा था, आई डोंट नो कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है नहीं है, बट मैंने मल्टीपल जगह वो देखी है। मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक्स आर जो आप इंस्टेंटली सुबह अपने आप को, मेजर हार्ट अटैक्स को कहते हैं सुबह के वक्त होता है। हाँ, ये बताया मुझे। और उसका मेजर रीजन ये है कि आप सुबह उठते ही एकदम से अपनी बॉडी को एक शॉक देते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, मैंने क्या करना है, ये क्या करना है, एकदम से शॉक उसमें मोड में जाते हो। ओके। अब मैं मतलब आई पर्सनली बिलीव कि आप फोन साइड पे रख के आप पहले तो अपना एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, चाहे आप उसको नमाज बोलें, चाहे आप इसको साइलेंस में आइसोलेशन बोलें, और आप जस्ट थिंक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट यू शुड डू फॉर द डे। मेरा वहां से थोड़ा एंजाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू। आई मेडिटेट कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। उसको एक पर्टिकुलर टर्म फॉर इट, मेटाकॉग्निशन और समथिंग, when you are able to understand your own actions and then you are able to work on it, beliefs. Wow. So मैं इस वजह से, और यार जितना आप काम करोगे उतना एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा। I'm not downplaying anyone who has you know any concerns about this field. मैं सिर्फ काम करता हूँ और जिस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ वो करता हूँ, और मेरा मेंटल स्ट्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहता है। हर किसी का अलग मैकेनिज्म है कोप करने का। जितना आप काम करोगे उतना डिप्रेशन कम होगा, मुझे ये चीज समझ आती है, और इट इज वर्किंग फॉर मी। अच्छा, जहां हमने काम की बात की, यू आर ड्रिवन बाय द वर्क, बाय एम्बिशन, अल्हम्दुलिल्लाह आप रिलीजियस भी हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, चीजें करते हैं। एक और एलिमेंट जो आता है इंसान की जिंदगी में, वो फैमिली का आता है। यू आर मैरिड पर्सन एज वेल। अगेन, व्हाट डू यू थिंक इज अ रोल ऑफ योर स्पाउस और ऑफ योर पार्टनर और आपके चिल्ड्रन, जो भी आपके होते हैं, ना कि माँ बाप की बात नहीं कहूंगा, बिकॉज माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा रहता है, बट स्पेशली स्पाउसेस, स्पेशली पार्टनर्स, ऐसे वक्तों में उनका क्या रोल है?
आप किस तरह सपोर्ट करते हैं, आपको किस तरह सपोर्ट मिलता है बाय ओन स्पाउस अगेन, और जो लोग सुन रहे हैं हमें फॉर एग्जांपल, जो अक्सर मर्द हजरात सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारी स्ट्रेस अपने अंदर ज्यादा रखते हैं और बात नहीं करते लॉट ऑफ टाइम्स, नो व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट? The most important decision in your life is your spouse, who your spouse is. Yeah. For me, Alhamdulillah, I have the most supporting spouse. Alhamdulillah. Everything that I do is very mostly bold. कुछ डिसीजन मैं लेता हूँ, वो कहती है यार कुछ ज्यादा डिसरप्टिव है, मैं कहता है मुझे करना है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, why not? I want to think big, dream big. Okay. So everyone has different strengths. मुझे ऐसा लगता है मेरे स्पाउस की स्ट्रेंथ है कि वो she can support me well, she can provide the base. She जहाँ मैं इतना out, मतलब when I'm dreaming big, I'm being very disruptive, she can be like अच्छा ठीक है, I'm taking care of other things. So तुम करो तो मैं जो करना है. Okay. Whenever I have stress, I share it. तो वो थोड़ा I get calmed down. So that's the most important thing in a relationship. As a man, ये मेरा personal belief है, nothing against any other beliefs, but as a man you have to create and you have to do something great in life. Yeah. मेरा belief है कि roles different है. Okay. In a relationship, in a marriage, roles different है. Okay. For me as a man, I have to create, I have to do something big, I have to earn for the family, I have to provide the protection, the security, and मैं lazy नहीं हो सकता और मैं इस तरह नहीं बैठ सकता. हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आई शुड शेयर इट, बट आई शुडंट मेक इट एन एक्सक्यूज कि बस यार मैं क्या करूँ, मेरी तो जिंदगी. शुडंट ब्लेम अदर पीपल. यार काम करो और कुछ बड़ा करो. और मेरी स्पाउस है, इफ शी हैज टाइम, अगेन उसके अपने एम्बिशंस है, वो करें, और हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें इस चीज में. दैट्स इट. स्पाउस एक यार बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और आपकी लाइफ मेक और ब्रेक है. बिकॉज जो सपोर्ट है ना, मेंटल जॉब स्ट्रेस, वो आपकी स्पाउस के साथ 20 मिनट भी बैठ जाए, आपको दिन की स्ट्रेस ही खत्म हो जाती है. कुछ लोगों की स्ट्रेस बढ़ जाती है, वो बिकॉज उनका रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन ऐसा होता है. मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट आई फील काम एंड देन आई थिंक अब और करूंगा कुछ. वाओ, सो दैट बिकम्स अ मोटिवेशनल फैक्टर मोर. हाँ, बिकॉज मुझे लगता है यार बेस तो सेट है ना, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो कर लेगी ना मैनेज. तो मैं और कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं और कुछ करूं, टेंशन नहीं लूं. परफेक्ट. लास्ट क्वेश्चन उमर, तीसरा सेगमेंट खत्म हुआ. ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें करने को, बट ऑफ कोर्स पॉडकास्ट का टाइम थोड़ा लिमिटेड है. इफ यू गेट टू मीट उमर हु वाज फ्रेश ग्रेड, 23, 24, 25 years of age, जब वो अपने करियर में एंटर हो रहा है, तो आज का उमर उस उमर को क्या मशवरा देगा? यार tough question. But honestly, I think for the longest time I've been very afraid of things. ये हो गया तो क्या होगा? छोटी सी बात को अपने माइंड में बड़ा बना लेना when it doesn't even exist. जब वो हो ही नहीं रही. मैं अपने आप को मशवरा दूंगा कि खुला मैदान है, ओपन होके, जो कि मैं करता भी हूँ, but a lot of times I felt कि मैं I've been very risk averse. और दूसरा मशवरा मैं अपने आप को देता कि बिजनेस में घुसो जल्दी घुसो. You need to have, and for young professionals as well, advice I can give, have a second income already. Not because आपकी जॉब की वजह से कि आपकी जॉब अच्छी है नहीं है. You should be financially independent in life and you should work on things that you like. वो जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, जो भी है. Should have other income. ये जो आप पढ़ के निकलते हो और एक नैरो माइंड के साथ होते हो ना, यार जॉब ही है जिंदगी, इसी तरह रिटायर होऊंगा, इतनी ही मेरे पास पैसे हैं, बस यही मेरी जिंदगी है. ये थोड़ा सा आई थिंक ये मैंने किया है 7-8 साल, जिसकी वजह से आई थिंक आई कुड हैव लर्नड अ बिट अर्लियर. राइट. सी सो अगेन हमने बात की आखिरी एडवाइस उमर का कि बिजनेस में जल्दी एंटर हो जाओ और डरो मत, क्योंकि खुला मैदान है. विद दैट नोट हमारा आज का पॉडकास्ट होता है खत्म. हम फिर से मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया उमर हमें ज्वाइन करने का. इट वाज अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू. देयर इज सो मच दैट आई हैव लर्नड विद यू एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू मोर ऑफन in life as well. Thank you so much. Thank you, man.